ہے یہاں تو نہ دانا ہے نہ پانی ہے, دور دور تک نہ دانا نظر آتا ہے نہ پانی, یہ زندہ کیسے ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب رسول خدا کہتے ہیں اے سلمان, تمہیں علی نے پرندوں کی زبان سکھائی تھی نا, اور امام اس وقت تک حجت خدا نہیں ہوتا جب تک ہر زبان کا مالک نہ ہو. ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا جی رسول خدا علی نے پرندوں کی زبان سکھائی تھی, تو رسول نے کہا تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پرندے سے خود پوچھ لو. جناب سلمان پرندے کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد پوچھا ہے پرندے یہ بتا تو اس صحرا میں زندہ کیسے ہے؟ یہاں تو نہ دانا ہے نہ پانی ہے, تو کھاتا کیا ہے پیتا کیا ہے؟ ایک مرتبہ پرندہ انگڑائی لے کر کہتا ہے اے سلمان, جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں محمد و آل محمد پر درود بھیجتا ہوں, اور جب پیاس لگتی ہے تو ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہوں. ایسا کرنے سے, صلوات پڑھنے سے میری بھوک ختم ہو جاتی ہے, لعنت بھیجنے سے میری پیاس ختم ہو جاتی ہے. عزیزان محترم, اہل بیت علیہم السلام تمام مخلوقات پر حجت خدا ہیں. مولا علی نے ہر جگہ مسجد کوفہ میں, بلکہ یوں کہہ دوں کہ ہر جگہ مدینے میں, کعبہ میں, مکہ میں, اور جنگ میں, میدان میں, اپنوں میں, غیروں میں, سب سے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفتدونی, جو پوچھنا ہو پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں, میں تو رہوں گا تم مجھے کھو دو گے, میں تو رہوں گا تم مجھے کھو دو گے. بھائی قرآن کہتا ہے نا کہ جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا, بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. اور دوسری جگہ قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے جو ایمان لائے بغیر مر جائیں وہ کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, چلتے بھی ہیں, لیکن وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں, وہ زندہ نہیں ہیں. محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چلتی پھرتی لاشیں ہیں, وہ زندہ نہیں ہیں. تو مولا نے کہا کہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو. اب بھائی اگر ہم مولا کی خدمت میں دعائیں مانگتے ہیں تو بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں بھائی مردوں سے کیوں مانگتے ہو, یہ مردہ ہیں ان سے مت مانگو. تو میں کہوں گا بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ مردوں سے مت مانگو, زندوں سے مانگو, یہ تمہیں دیں گے. زندوں سے مانگو یہ تمہیں دیں گے. اب مولا نے جیسے ہی سلونی کا دعویٰ کیا, کچھ لوگ آگے بڑھے. اب جانتے ہی ہیں کیسے کیسے سوال ہوتے تھے. مولا سے پوچھا جاتا تھا میرے سر میں بال کتنے ہیں, میں دوپہر کے کھانے میں کھاؤں گا کیا. ایک صاحب نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکالا, پوچھا مولا یہ بتائے میری مٹھی میں کیا ہے. مولا نے کہا وہی جو تو نے اپنے جیب سے نکالا ہے. اتنا سارے سوال کرنے والے سارے سائل ابھی موجود ہی تھے کہ ایک شخص کو جلال آیا, وہ مجمع کے بیچ سے کھڑا ہوا. کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے اے علی یہ بتائے اس وقت جبریل کہاں ہے, اس وقت جبریل کہاں ہے. اب جبریل ہے فرشتہ, اور فرشتہ بنا ہے نور سے, اور نور کسی بھی چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے, نور کسی بھی چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے. اور دوسری جگہ جنات کے لیے بھی ہے کہ جنات بنا ہے نار سے یعنی آنکھ سے, وہ بھی ہر چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے. فرشتہ بنا ہے نور سے, ہر چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن سوائے نجس جانوروں کے, کیونکہ فرشتہ ہے پاک, وہ نجس جانوروں میں نہیں تبدیل ہو سکتا. جن ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ نجس جانوروں میں بھی. مولا نے ایک مرتبہ اپنی نگاہ کو سامنے دوڑایا, سامنے دیکھا تمام انسانیت کو دیکھ لیا, جبریل کہیں نظر نہیں آئے. اس کے بعد مولا نے دائیں طرف دیکھا, تمام صحرا میں دیکھ لیا, جبریل نظر نہیں آئے. ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا, تمام جنگلوں میں دیکھ لیا, جبریل نظر نہیں آئے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا, آسمان کی بلندیوں میں دیکھ لیا, جبریل نظر نہیں آئے.
जमीन में देखा, समंदरों की गहराई में देख लिया, जिब्रील नजर कहीं नहीं आए, जिब्रील नजर कहीं नहीं आए। मौला ने फिर पीछे देखा, भाई सिम 6 होती है ना। मौला ने कहा कि मैंने सारी कायनात छान मारी, मुझे जिब्रील कहीं नजर नहीं आए। अय्युह साइल, ऐ सवाल करने वाले, अब बस 2 ही लोग बचे हैं, एक तो तू जो सवाल पूछ रहा है, दूसरा मैं तो हूं अली इब्ने अबी तालिब, बस तू है जिब्रील, बस तू है जिब्रील। मौला ने जैसे ही कहा, अभी सारे जितने लोग वहां मौजूद थे सब मौजूद थे कि सवाल पूछने वाले ने अपने दोनों परों को खोला, मस्जिद कूफा की छत को शिगाफ्त किया, शिगाफ्त करने के बाद उड़ा, उड़ने के बाद छत को जोड़ दिया। अब एतराज करने वालों ने एतराज किया कि अगर जवाब मिल गया था तो जिब्रील को चुपचाप चले जाना चाहिए था, मस्जिद कूफा की छत को शिगाफ्त क्यों किया? तो मैं कहूंगा अगर जिब्रील चुपचाप उठकर चले जाते तो कल का मुअर्रिखीन, कल का रावी यही लिखता कि शायद अली ने किसी को पैसे देकर बैठा रखा था, किसी को पैसे देकर बैठा रखा था, इसीलिए जिब्रील ने कहा मैं मस्जिद कूफा की छत को शिगाफ्त करके जोड़कर यह बताऊंगा कि मैं ही था जिब्रील, मैं ही था जिब्रील। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हरदम अली अली सहरा का शौहर, अली अली सहरा का शौहर, अली अली दामाद पैगंबर, अली अली दामाद पैगंबर, अली अली जिब्रील का टीचर, अली अली जिब्रील का टीचर, अली अली नारा हैदरी, या अली मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिब्रील ने मस्जिद कूफा की छत को फाड़ के बता दिया कि मैं ही था जिब्रील। अब किसी को ना कहना कि अली ने किसी को बैठा रखा था। भाई अब देखें कि कुछ लोग ऐसे भी थे, अहले बैत अलैहिस्सलाम के शान में बहुत सी आयतें नाजिल हुई, कुछ लोगों ने ये सोचा कि हम भी शामिल हो जाएं इनमें, और पहुंच भी गए शामिल होने के लिए। लेकिन एक चीज याद रखें, आयत खुद बताती हम किनकी शान में नाजिल हुए हैं, आयत खुद बताती है कि हम किनकी शान में नाजिल हुए हैं। अब इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन आयत में तो शामिल हो नहीं सके। तो एक रसूल की बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस है, क्या है? अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूं और अली उसके दरवाजे हैं। जब इन्होंने हदीस सुना तो सोचा कि हम आयत में तो शामिल हो नहीं सकते हैं, तो अब चलो इसी हदीस में शामिल हो जाते हैं। अब किसी को बनाने वालों ने छत बना दिया, किसी को छत बना दिया गया, किसी को दीवार बना दी गई, किसी को परनाला बना दिया गया। एक चीज याद रखें, जहां भी दुश्मनी अली, अली की दुश्मनी दिमाग में आती है, अक्ल जायल हो जाती है, अक्ल जायल हो जाती है। अब इन्होंने लोगों को छत तो बना दिया लेकिन ये भूल गए कि छत मकान की होती है, शहर की नहीं। छत शहर की हो, मकान की होती है, शहर की नहीं। जिस हदीस को मैंने अपना कलाम करार दिया है वो हदीस क्या है? सब ने लिखा है, हमने भी लिखा, उन्होंने भी लिखा, हदीस सही व सनद है। क्या है? इन्नल्लाह यग़ज़बु लिग़ज़बिल फातिमा, अल्लाह गजबनाक होता है फातिमा के गजबनाक होने से। बात तय है, अल्लाह गजबनाक होता है फातिमा के गजबनाक होने से। अच्छा, एक गुनहगार इंसान क्या काम करता है, क्या कोशिश करता है? वो कोशिश ये करता है कि हम नेक काम करें ताकि अल्लाह राजी हो जाए। गुनहगार इंसान के दिल की तमन्ना यही होती ना भाई कि हम नेक काम करें ताकि अल्लाह राजी हो जाए। और हम लोग आज के मुसलमान, हम सहाबा के लिए दुआ करते हैं कि रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राजी हो, है नहीं? अल्लाह राजी हो, है नहीं?
अब हदीस सही और सनद है। अब एक गुनहगार इंसान, उसकी दिल की तमन्ना ये होती है कि हम नेक काम करें ताकि अल्लाह राजी हो जाए, नमाज पढ़े ताकि अल्लाह राजी हो जाए, ज़कात दे ताकि अल्लाह राजी हो जाए, खुम्स अता करे ताकि अल्लाह राजी हो जाए, हज पे जाए ताकि अल्लाह राजी हो जाए, मजलिसों में आए ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हाँ, नेक काम करे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। ये तो है गुनहगारों का मकाम। अब मासूमीन अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है, मैं बताता हूं। मासूमीन अलैहिस्सलाम का मकाम क्या है? मासूमीन अलैहिस्सलाम भी क्या हमारी तरह अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं? कहा नहीं। कहा फिर? कहा कि वो तो जानते हैं कि अल्लाह उनसे राजी है, तभी तो उन्हें नबी या इमाम बनाकर भेजा। अल्लाह उनसे राजी है तभी उन्हें नबी या इमाम बनाकर भेजा। अब वो कोशिश क्या करते हैं? तो वो कोशिश ये करते हैं कि उसकी रजा में राजी रहें, उसकी रजा में राजी रहें। हम कोशिश करते हैं उसको राजी करने की। वो क्या कोशिश? मैं मिसाल से बात को आगे कर दूं। जनाब इब्राहिम है, अल्लाह ने उनको बेटा नहीं दिया, इब्राहिम राजी, उसकी रजा में राजी। परवरदिगार ने बेटा नहीं दिया, इब्राहिम उसकी रजा में राजी। बुढ़ापे में अल्लाह ने उन्हें बेटा अता किया, इब्राहिम राजी। उसकी मासूमीन उसकी रजा में राजी रहते हैं, चाहे वो तकलीफ में रखे या जैसे भी रखे, उसकी रजा में राजी रहते हैं। अब इब्राहिम को बेटा दिया बुढ़ापे में, इब्राहिम राजी। भाई शिकवा तो जनाबे सारा ने किया था ना कि परवरदिगार, तो बुढ़ापे में जब जिब्रील आए, कहा परवरदिगार ने तुम्हें बेटे की बशारत दी है, तो जिब्रील ने कहा कि ऐ सारा, अगर बेटा परवरदिगार इस बुढ़ापे में बेटा देने की कुदरत रखता है तो वही सेहत भी देगा, वही हिफाजत भी करेगा, वही सेहत भी देगा, वही हिफाजत भी करेगा। लेकिन जनाब इब्राहिम ने शिकवा नहीं किया, उसकी रजा में राजी रहे। ठीक, यहां तक कि परवरदिगार बेटा देने के बाद मांग लिया, इब्राहिम ने छुरी गर्दन पे रख दी, उसकी रजा में राजी। कहा परवरदिगार तूने बेटा मांगा है, तूने दिया तो मैं कुर्बान कर दूंगा। एक मर्तबा आवाज़े पर्दाए गए भाई, परवरदिगार ने कहा इब्राहिम अल्लाह तुमसे राजी है, हमें बेटा नहीं चाहिए, हम दुम्बा भेजे दे रहे हैं। बात समझ गए? ये है मासूमीन का मकाम, ये मासूमीन का मकाम। तो मैं आज के तमाम मुसलमान उलमा से सवाल करूंगा कि उस दौर में जो रसूल ने हदीस बयान करी थी उसका क्या मतलब है? क्या फातिमा का मुकाम सहाबा के बराबर है कि वो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं? क्या रसूल ये फरमाना चाहते हैं कि फातिमा अल्लाह को राजी करने की कोशिश करती है? कहा नहीं। कहा फिर क्या कोशिश करते हैं? क्या मासूमीन अलैहिस्सलाम जैसे उसकी रजा में राजी रहते वैसे फातिमा के लिए इरशाद फरमा रहे हैं कि उसकी रजा में राजी रहती हैं? कहा नहीं। कहा फिर इरशाद फरमाना क्या चाहते हैं? तो एक मर्तबा कहते हैं कि यानी रसूल खुदा ये इरशाद फरमाना चाहते हैं कि अगर तुमको अल्लाह की रजा को देखना है तो सैयदा की रजा को देख लो। अगर ये राजी तो वो राजी, अगर ये नाराज तो वो नाराज, अगर ये नाराज तो वो नाराज। अब भाई हम मजलिसों में आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हमने रसूल की बात को समझ लिया था, हमने रसूल की बात को समझ लिया था, जिससे ये राजी होंगी उसी से वो राजी होगा। अब देखिए यहां से बस एक जुमला आखिरी कि ये मेरा अकीदा है, मैं अपना अकीदा पढ़ता हूं, मजमे की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, मैं अपना अकीदा पढ़ रहा हूं, अगर मेरा अकीदा पसंद आए तो बोलिएगा वरना चुप रहिएगा, मैं उससे भी राजी रहूंगा। अब मैं अपना अकीदा पढ़ रहा हूं, देखिए मैं अपने आप को सहाबा के कदमों की खाक भी नहीं समझता, सुनिएगा, मैं अपने आप को सहाबा के कदमों की खाक भी नहीं समझता, लेकिन शर्त है पहले उनसे सैयदा राजी हो, पहले उनसे सैयदा राजी हो। मैं अपने आप को, फिर बात को दोहरा दूं, मैं अपने आप को सहाबा के कदमों की खाक भी नहीं समझता, लेकिन शर्त है पहले उनसे सैयदा राजी हो। अगर उनसे सैयदा राजी नहीं तो फिर मैं उन्हें अपने कदमों की खाक नहीं समझता।
اپنے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العلی العظیم.